بارکھان آپریشن 7 فتنے لگے ٹھکانے بلوچستان کے علاقے بارکھان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن بھارتی حمایت یافتہ کالعدم فتنۃ الہندوستان کے ساتھ دہشت گرد جہنم واصل فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر توصیف احمد بھٹی سمیت 5 جوان شہید شہداء میں نائک فدا حسین سپاہی سہیل احمد سپاہی ذاکر حسین سپاہی محمد ایاز مارے گئے ہیں جبکہ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد جبکہ ISPR کے مطابق پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قوم کا فخر ہیں مادر وطن کے دفاع میں جان قربان کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں عزم استحکام کے تحت ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر کے مکمل خاتمہ کیا جائے گا اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی یہ اعزاز آپ کا ہوا یہ خلط آپ کو ملی ایوان صدر میں مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کے اعزاز میں سول ایوارڈ تقسیم کرنے کی پروقار تقریب صدر مملکت آصف علی زرداری نے ممتاز شخصیات میں قومی اعزازات تقسیم کیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر وفاقی وزیر اویس لغاری کو ہلال امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ کرکٹر شاہد آفریدی کو کھیل کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کو نشان امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا گیا کوہاٹ میں خودکش بمبار کو روک کر قیمتی جانیں بچانے والے بہادر شہری شہید لیاقت علی کی قربانی کا قومی سطح پر اعتراف ستارہ شجاعت سے نوازا گیا ایوارڈ شہید کی والدہ نے وصول کیا لیاقت علی کے اہل خانہ کو مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ایوان صدر میں لایا گیا گورنر ہاؤس سول اعزازات کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا گورنر ہاؤس کراچی میں قومی سول اعزازات کی تقسیم کی پروقار تقریب گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ ممتاز شخصیات کو قومی اعزازات سے نوازا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کابینہ سمیت تقریب میں شرکت 12 شخصیات کو ستارہ امتیاز 13 شخصیات کو تمغہ امتیاز 1 شخصیت کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا اداکارہ فضیلہ قاضی سویرہ ندیم کو ستارہ امتیاز عطا مختار ناز تاج مستانی کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تاریخی دورہ عالمی پیش رفت امریکی صدر ٹرمپ چین کے 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے بیجنگ پہنچنے پر چینی نائب صدر ہانگ جینگ نے امریکی صدر کا استقبال کیا ہے امریکی صدر کے استقبال کے لیے تقریباً 300 چینی نوجوان بھی موجود تھے جنہوں نے ہاتھوں میں امریکی اور چینی پرچم اٹھا رکھے تھے ٹرمپ کے ساتھ ان کی سرکاری جہاز میں آنے والوں میں ان کے بیٹے ایرک ٹرمپ بہو لارا ٹرمپ اور ایلون مسک بھی شامل ہیں اپنے دورے میں امریکی صدر چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقاتیں کریں گے 4 ایرانی کشتی کی قیدی کویت نے غیر قانونی طور پر ایک ایرانی کشتی پر حملہ کر کے 4 ایرانی شہریوں کو گرفتار کر لیا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دعویٰ کہا یہ واقعہ ایک ایسے جزیرے کے قریب پیش آیا ہے جو امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے عباس اراغچی نے کہا کہ ایران اپنے شہریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے اس معاملے پر مناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے ایران خطے میں کشیدگی میں اضافے سے گریز چاہتا ہے تاہم اپنے شہریوں کے خلاف کسی بھی کارروائی پر خاموش نہیں رہے گا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ سے رابطہ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ایران امریکہ مذاکرات اور امن و استحکام کے فروغ سے متعلق امور پر بات چیت کویتی وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کے امن کی کوششوں کی تعریف کی ہے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی تعمیر اور مثبت کردار کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہم ایران ہیں دنیا ہمارا ساتھ دے ایران کی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہے ایران سے دشمنی کی جرات کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی ایرانی وزارت خارجہ کا ترجمان اسماعیل بقائی کا انتباہ کہا کہ دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے دنیا عملی اقدام کرے اس سے پہلے کہ جاری قوتیں دنیا کو لاقانونیت اور حکومتوں کی گڑھ میں دھکیل دیں
नाकाबिल भरोसा नाकाबिल एतबार अफगान तालिबान अय्यार। अफगान तालिबान से 3 बार बातचीत करके देख ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल न होने की ज़मानत देने को तैयार नहीं। दहशतगर्दी के दौरान भी अफगानिस्तान से बातचीत जारी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए यकीन दहानी कराने में नाकाम। कतर, तुर्की और सऊदी अरब ने किरदार अदा किया। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। भारत अब हमारे साथ बराह रास्त नहीं लड़ेगा, अब अफगानिस्तान के ज़रिए लड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। पहले केपी हुकूमत का ताउन हासिल नहीं था, सारे एक पेज पर हैं। दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। अता तारड़ पुरजोर वजाहतें भरपूर। मजम्मतें भारत में दहशतगर्दी उनका दाखिली मामला है। वज़ीर तारड़ का कहना है कि जम्मू कश्मीर का मसला आलमी मसला है। जम्मू कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। रियासती इदारों में मुकम्मल यकसुई हमारी मजबूती का मज़र है। पहलगाम वाक़े की तहकीकात किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। पहलगाम का इलाका सरहद से कहीं दूर भारतीय फ़ौज के मरकज़ में है। दाखिली मसाइल को खारजी और खारजी मसाइल को दाखिली रंग देना भारत का वतीरा है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियां लाजवाल हैं। कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़े जाना भारतीय दहशतगर्द ज़हनियत की वाज़ेह मिसाल है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। भारतीय मीडिया ने मुज़हक़-ख़ेज़ रिपोर्टिंग की है। पंजाब में मजदूरों के अच्छे दिन। पंजाब में मजदूर तबका अपने आशियाने का मालिक बन गया। सूबा दारुल हुकूमत लाहौर में मजदूरों के रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकलीफ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मजदूरों में फ्लैट्स के अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए। अपना घर बहुत बड़ी नेमत होती है। हर रिहायशी फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई। मुस्तहकम मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 720 रिहायशी फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। टैक्सेला में 500 घर तकमील के करीब हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके। जिन लोगों के पास जमीन नहीं मुफ्त फराहम करेंगे। चलो पिंकी हिसाब दो। कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मजीद अहम गिरफ्तारियां और हैरानकुन इंकशाफात सामने आने का इम्कान। अनमोल पिंकी को बचाने के लिए नामालूम कुव्वतें मुतहर्रिक हो गई। गार्डन थाने की CCTV फुटेज गायब होने का इंकशाफ। पिंकी कब थाने आई और कब थाने से निकली, तमाम मनाजिर की थाने में कोई CCTV मौजूद नहीं। पुलिस हुक्म के मुताबिक बिजली ना होने की वजह से फुटेज रिकॉर्ड ना हो सकी। अनमोल पिंकी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने की वाली पुलिस टीम मुश्किल में फंस गई। इस घर से मुलजिमा की गिरफ्तारी जाहिर की गई है। वो रिजवान लाखानी नामी गुटखा फरोश का निकला। सरबराह तहकीकाती कमेटी DIG वेस्ट ने पूछगछ के लिए तीनों मुअत्तल अफसरान को भी तलब कर लिया। सुन बाबा सुन अनमोल पिंकी के नशीले गुण। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी पूरे पाकिस्तान में मनशत की तरसील और सप्लाई के एक मुनज़्ज़म नेटवर्क को चला रही थी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिलिना मीमन का इंकशाफ। कहा मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। ये नेटवर्क नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेलने में मुलव्वस था। हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। हुकूमत सिंध मंशियात फरोश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करेगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत में पेश होने वाला वाक़या अफसोसनाक था। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े पर एक्शन लिया। मौके पर मौजूद 2 पुलिस के एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया। लहराती बलखाती नशे की पुड़िया मुलजिम चुड़िया। अनमोल उर्फ पिंकी केस में पुलिस की बौखलाहट सामने आ गई। अनमोल के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज कत्ल का मुकदमा भी मशकूक हो गया। मरने वाले की शनाख्त तो कोई नहीं, मुलजिम का पता लगा लिया गया। मुकदमे की मतन की पुलिस की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक 5 मई को मेलियारी बगदादी हाजी पीर मोहम्मद रोड से गुजर रहा था। एक नामालूम 25 से 30 साल नौजवान की लाश पड़ी थी। नौजवान नशाई लग रहा था। मरने वाले के ट्राउजर की जेब से एक डब्बी निकली। डब्बी पर क्वीन मैडम पिंकी डॉन नाम ही काफ़ी है, एंजॉय लिखा था। मालूमात की तो पता चला कि अनमोल उर्फ पिंकी नशा फरोख्त करती है।
पिंकी रे पिंकी मवालियों को किसके सहारे पर छोड़ आई। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की एक और ऑडियो सामने आ गई है। अनमोल उर्फ पिंकी ने ऑडियो के जरिए तमाम क्लाइंट्स को अपनी गिरफ्तारी से आगाह किया। तमाम ऑडियो में पिंकी ने कहा है कि अगर आप मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं तो ये मेरे साथ कोई भी मसला हुआ या मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो इस नंबर से कोई आपके राब्ते में आएगा। राब्ता करने वाला मर्द होगा जो मेरा दोस्त होगा, जो इस काम को हैंडल करेगा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। जुर्म करल का हाथ हल्का, पिंकी के बाद नरगिस मलिका, कुकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के बाद कराची पुलिस की फुर्तियां। कराची से एक और खातून ड्रग डीलर नरगिस उर्फ मलिका गिरफ्तार। कायदाबाद पुलिस ने नरगिस उर्फ मलिका को 35 किलो मनशियात और 1 लाख रुपए नकदी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा से बरामद आला क्वालिटी चर्च की मालियत 60 लाख रुपए से ज़ायद बताई जाती है। बरामद होने वाली मनशियात कराची के मुख्तलिफ मकामात और पोश इलाकों में फ़रोख्त की जाती है। पकड़ो पकड़ो जकड़ो जकड़ो, कराची में FIA का क्रैकडाउन, जाली अद्वियात और हवाला हुंडी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। मेडिसन मार्केट डेनिसो हॉल की 20 दुकानें जाली और जायदुल मय्याद अद्वियात बरामद। 20 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। शारा फैसल से हवाला हुंडी मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 54,50,000 रुपये पाकिस्तानी, 44,000 से ज़ायद अमरीकी डॉलर, 45,000 से ज़ायद अमाराती दरहम बरामद। और डॉलर्स आ गए। पाकिस्तान को IMF से 1.3 अरब डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामी के मुताबिक मुंतकली VFF और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। स्टेट बैंक को मजमूई तौर पर 914 मिलियन SDR मौसूला रकम पाकिस्तानी रुपए में नहीं बल्कि ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। सनत लगाओ कर्जा पाओ, सनतों को आसान कर्ज की फरहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। इजलास के दौरान कहा कि हुकूमत बरामदी मंडियों तक रसाई के लिए काम कर रही है। समीरा और वज़ारत सनत की जानिब से रोड मैप इत्मीनान बख्श है। मुय्यना मुद्दत में काबिल हुसूल अहदाफ के साथ इतलाक़ का लाहे अमल पेश किया जाए। छोटे दरमियाने दर्जे की सनतों में ख़वातीन की शमूलियत खुशाइन है। ख़वातीन के आसान कर्ज़ों तक रसाई के लिए इक़दाम को मौसर किया जाए। हेपेटाइटिस C प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत के शोबे में नुमायाँ तब्दीली ला रहे हैं। मसाइल पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी है कि पहले मर्ज़ की तशख़ीस की जाए। अगर वक्त पर मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए तो इलाज मौलिजा मुमकिन है। हुकूमत बीमारियों की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम कर रही है। बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस से कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। सर मेरी तरफ से गुड बाय। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर लांस डूम की अलविदाई मुलाकात में पाक बरतानिया तजारती, तालीमी, सकाफती और सफारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सिंध में बरतानवी सरमायाकारी और तरक्याती शुबों में ताउन को खुशाइन करार दिया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम, तारीख़ी रवाबित और मुश्तरका ताउन मबनी है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत पुल का किरदार अदा कर रही है। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान खुसूसन कराची की मौशी तजारती अहमियत को सराहा। ये लो 10 अरब रुपए और सजाओ कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दे दी है। कराची मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर इजलास के दौरान शहर में ट्रैफिक की रवानी, सड़कों की बहाली और ट्रांसपोर्ट निज़ाम समेत 10 मेगा प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला सिंध की कराची के तरक्याती मनसूबों बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अज़ीमपुरा से लांडी मुर्तज़ा चौरंगी तक मुतबादिल कॉरिडोर मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। फिर सस्ता हो गया सोना। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 1100 रुपए की कमी के बाद फ़ी तोला सोने की कीमत 4,91,362 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $11 कम होकर 4,690 डॉलर फी औंस है।
अब आटा लेने जाओ तो कितने पैसे लाओ। शहर कायद में आटे की नई सरकारी कीमत मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने आटे की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आटे की होलसेल कीमत 110 रुपये और रिटेल कीमत 113 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। फाइन आटे की होलसेल कीमत 118 रुपये और रिटेल कीमत 121 रुपये फी किलो हो गई है। चक्की के आटे की रिटेल कीमत 145 रुपये फी किलो मुकर्रर। मौसम की रानी कंदकोट पर मेहरबान। कंदकोट में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी, कच्चे मकानात गिर गए। कई नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। शहर भर में बिजली की फरहमी मुतासर, मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम खुशगवार, शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। तगड़े जोड़ का शोर, तैयारी का जोर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए लाहौर में कैंप का इनेकाद किया जाएगा। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 30 मई को 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। कैंप 21 मई तक लाहौर में जारी रहेगा। लाहौर NCA में वाइट बॉल कैंप 15 मई से शुरू होगा। 28 खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशंस और प्रैक्टिस में मैचेस के साथ हिस्सा लेंगे। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे विमेंस के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा फ्लडलाइट मैच जुमेरात को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। जबकि रोटेशन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान टीम में कम से कम 2 तब्दीलियां मुतवक्के। पहला मुकाबला रिकॉर्ड 153 रन से जीतने वाली पाकिस्तान विमेन टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।